ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਭੇਜਾਂਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਲਕੋਹਲਸ ਐਂਡ ਫਿਨੋਲਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲੋਅਲਕੇਨਸ ਹੈਲੋਅਰੀਨਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ। ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਲਕੋਹਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਿਕਸ, ਸਫਿਕਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਛੇਤਰ। ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ OH। ਜਿਵੇਂ मैं एग्जाम्पल लिख रही हाँ, मेरी पहली एग्जाम्पल है CH3OH। एक कार्बन वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਥ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। एन ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ OH ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸੋ 1 ऑल। ठीक है, नो डाउट ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਥेनॉल भी ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, बट ਅਸੀਂ 1 ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। सेकंड एग्जाम्पल ले रही हैं CH3CH2OH। सो दिस इज दो कार्बन वाले ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इथ, डबल बॉन्ड है नहीं ओल। मैं क्यों कह रही हूं, मैं ऐसे एग्जांपल ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਸੀ। CH3 CH2 CH2OH ਤਿੰਨ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪ, डबल बॉन्ड है नहीं एन 1 ऑल। ਹੁਣ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ OH ਫਸਟ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 1 ਲਿਖੋ, ਜੇ 1 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪ एन डबल बॉन्ड है नहीं 2 OL। ਚਲੋ ਤਿੰਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ +1 ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ CH2OH CH2OH। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਜੇ। ਇਹ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਥ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ एन, ਦੋ ਓਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਤੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 1 2 डाई और ध्यान ना देखना, दो कार्बन इथ, डबल बॉन्ड है नहीं एन, पहले ते OH दूजे ते OH। सो 1 ते 2 डाई मीन्स दो, ओल मीन्स ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਗਲਾਈਕੋਲ। याद रखना ਇਹਦਾ ਆ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ। ਫਿਫਥ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ CH2OH CH CH2OH। एग्जाम्पल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ बट कार्बन ने 3 1 2 3। सो दिस इज prop, डबल बॉन्ड है नहीं एन, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹੈ 1 2 ਤੇ 3 ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, that is triol। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਮੈਂ +1 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੈਂਜ਼ੀਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲਕੋਹਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਲਕੋਹਲ ਚ ਕੋਡ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਫਿਨੋਲ ਚ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੈਂਜ਼ਾਈਲ ਐਲਕੋਹਲ ਐਲਕੋਹਲ ਚ ਹੈ, ਫਿਨੋਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਨੋਲ ਹੈਗਾ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ OH ਲਿਖਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਿਨੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜੇ ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ दिस इज ऑर्थो पोजीशन CH3 लगा है, दिस इज क्रीजोल। आगे की लग जाएगा ऑर्थो, ऑर्थो ते लगा ऑर्थो क्रीजोल। यही चीज अगर मेटा ते लग जाती है, दिस इज
मेटाक्रिजोल। सिमिलरली अगर है पैरा ते लग जाती है, दिस इज पैराक्रिजोल। रिपीट कर रही है पोजीशंस। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਰਥੋ, ਉਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾ। ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਰਥੋ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੀਗੇ। क्रिजोल तो बाद ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਸਾਰੀਆਂ +1 ਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਚ, ਉਸ ਕਾਪੀ ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਫਿਨੋਲ ਦੇ ਅਗਰ ਆਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ OH ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਟੀਕੋਲ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ IUPAC ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਂਜ਼ੀਨ 1,2 ਡਾਇਓਲ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਮ ਆਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। सिमिलरली अगर ए OH ऑर्थो तो निकल के मैटा ते चला जाए, ये नाम बन जाता है रिसोर्सिनोल। एंड अगर पैरा ते चला जाए इट बिकम्स क्विनोल। इस तो इलावा जिहड़ियां साडे कोल फिनोल दी एग्जांपल्स पेपर च आनियां ने, जिन्हां चों वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज OHCHO। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੈਲੀਸੈਲਡੀਹਾਈਡ। अगर CHO दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, अगर ए ग्रुप चेंज हो जाए COOH मतलब एल्डिहाइड तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, इस सैलीसैल्डिहाइड की बजाय सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा। ਇਹ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ preparation from ਹੈਲੋਅਲਕੇਨਸ। याद करना, मैं पिछले चैप्टर च भी कहा सीगा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈਲੋਅਲਕੇਨਸ ਦੀਆਂ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈਲੋਅਲਕੇਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਅਲਕੇਨ। ਅਲਕੇਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ R, ਹੈਲੋਜਨ ਲਈ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ X, ਜਿੱਥੇ R ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ CH3 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, C2H5 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ C3H7 whatever, बट कोशिश करियो यही लेना। दो एग्जाम्पल ज़्यादा अगे जावांगे और कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, मुश्किल हो जाएगी, एग्जाम्पल वड्डी हो जाएगी। X साडे कोल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ते आयोडीन कुछ भी हो सकता है, बट मैं बार बार फिर तुहानू रिपीट कर रही हाँ कि फ्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंदा है, सो इन्हू यूज ना करना। ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ। ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੋਰੀਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਲੋਰੀਨ ਲੈ ਲਓ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੋ RX ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮੈਂ KOH। याद रखने योग गल जे एक्वस लिखना, अगर इत्थे एक्वस नहीं लिखते अल्कोहलिक लिख देने रिएक्शन बदल जाएगी। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, बड़ी सिंपल एग्जांपल है। ए ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, ए ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ, सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट होनी है। ROH ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਹੈ प्लस KX ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। CH3Br plus KOH, दोबारा रिमाइंड करा रही हैं, एक्वस लिखना नहीं भूलना।
रिएक्शन गलत हो जाएगी सारी लिखी हुई CH3OH प्लस साडे कोल बन गया KBr। सेकंड प्रेपरेशन है साडी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन शब्द तो समझ लगती है कि एडिशन ऑफ वाटर होएगी। एडिशन ऑफ एल्कीन्स दे विच अगर मैं इथीन दे विच वाटर पा दा ते तुहानू की लगता है हाइड्रेशन हो जाएगी? नहीं होएगी। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ +1 ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਦੈਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਏਜੈਂਟ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ H ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ CH3 CH2OSO3H। सल्फ्यूरिक एसिड का H इधर चला गया, बाकी सारा क्योंकि तोड़ के बनता है जिस तरह भी है ते साडे कोल इस तरह बन जाएगा। हुण मैं इहदे च पावांगी बॉइलिंग वाटर। वाटर का इहदे च ब्रेक करता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो हमेशा ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होंदे ने। ध्यान नाल देखो, अगर मैं बॉन्ड इथों ब्रेक करने की कोशिश करदी हां ते ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी एक टर्म याद करन नूं कही सी तुहानूं कि घरों निकलण लग्या तुसीं कुछ भी भुल जांदे हो, एक चीज कदी नहीं भुल के जांदे, दैट इज फोन। फोन इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। फ्लोरीन सब तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। सो इत्थे कार्बन ते ऑक्सीजन चों कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। नेगेटिव कोल पॉजिटिव ने आ जाना, पॉजिटिव कोल नेगेटिव ने आ जाना। सो साडा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH2OH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिहड़ा एज ए रिएजेंट पाया सी ते बाहर निकल गया। हुण एक एदी एग्जांपल मैं टर्शरी च लैके भी दिखा दा तुहानूं कि जिथे सानू सिंपल वाटर पा के, ठीक है, मैकेनिज्म यही चलेगा। एरो ते साडा डिल्यूट, क्योंकि एसिडिफाई ते करना ही पेगा। डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मैं पावांगी तो रिएक्शन इत्थे ही ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव। हुण बॉन्ड ब्रेक होएगा, टर्शरी कार्बन असी इत्थे मार्कोनी का फ्रूल लगना है। की कहंदा मार्कोनी का फ्रूल कि जिस कार्बन दे कोल घट हाइड्रोजन होणगे ओदे कोल नेगेटिव पार्ट जाएगा। नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स minimum number of hydrogens along the double bond. So ए वाला OH ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ए वाला H ਇਹਦੇ ਕੋਲ। सो साडा प्रोडक्ट बन गया CH3 C CH3 CH3OH। सो देख लो कार्बन दे नाल 3 कार्बन डायरेक्टली लगे ने। सो दिस इज टर्शरी अल्कोहल। साडी नेक्स्ट प्रेपरेशन है फ्रॉम Grignard's reagent। Grignard's reagent की होता है RMgX। हुन बिफोर आई स्टार्ट विद द रिएक्शन ध्यान नाल देखना, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। सो डेफिनेटली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। इन्हां दोनों चों ए पॉजिटिव होएगा, ए नेगेटिव होएगा। ए डाउट हमेशा अपने दिमाग चो क्लीयर करके चलना, अदरवाइज ये रिएक्शंस हमेशा गलत होंगियां। जिहड़ी मेटल हुंदी है वो हमेशा पॉजिटिव हुंदी है, उहदे नाल वाला पार्ट हमेशा नेगेटिव होएगा। याद रखो मेटल पॉजिटिव ही होनी है, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सो मैं सिंपलीफाई करके कार्बोनाइल दे नाल सिंपल, पहले मैं सिंपल एग्जांपल दे रही हां, मैं कोई ग्रुप नहीं लगाया, बाद एक ग्रुप लगा के एग्जांपल्स देनी है। RMgX। अच्छा हुण मैनूं पता लग गया दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। हुण इधर आपां फोन वाली गल करके आए सी। सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ते ऑपोजिट्स अट्रैक्ट है। नेगेटिव ने चल जाना पॉजिटिव को, पॉजिटिव ने चल जाना नेगेटिव को। मेरे को की बन गया, ए बॉन्ड्स नूं मैं छेड़िया नहीं सी, वो उत्थे ही ने। ऑक्सीजन दे नाल कौन लग गया,
MgX थल्ले की लग गया कार्बन के नाल R। ध्यान नाल दोबारा देख लो कि कार्बन पॉजिटिव ते ऑक्सीजन नेगेटिव हो। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले कॉन्सेप्ट ना गया, नेगेटिव कोल पॉजिटिव, पॉजिटिव कोल नेगेटिव। सो साडे कोल इत्थे तक दा प्रोडक्ट आ गया। इस तो बाद मैं इहदे च पाउणा अगेन सेम तरीके वाटर। साडा बॉन्ड किवें ब्रेक होना, जिथों मर्जी कर लो, नेगेटिव कोल पॉजिटिव ने आ जाना, पॉजिटिव कोल नेगेटिव ने आ जाना। सो दिस इज H, दिस इज OH। मेरे को की बन जाना है ROH प्लस MgX एंड OH। सिंपल, ठीक है। हुण मैं पहले सब तो पहले जो एक पासे R होए एक पासे H होए, इस ग्रुप नूं कहने असी एल्डिहाइड, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R अगेन ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ जो मैं पहले किया है, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, जिस तरह CH3 ले लो, C2H5 ले लो, ते X ਨੂੰ अगेन Cl ਤੇ Br ले सकते हो। एल्डिहाइड मैं फिर R MgX पाया, वही है डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यही डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। नेगेटिव ने जाना पॉजिटिव कोल, पॉजिटिव ने जाना नेगेटिव कोल। साडे कोल बन गया RCH OMgX ते थल्ले लग गया R। मेरे को फिर वाटर पाता मैं, वही HOH नाल वही MgX ते OH। अगर मैं सेम एग्जांपल दो बार ला ला, यह हो जाएगा कीटोन R MgX। मेरा ख्याल है हुण तक डाउट क्लियर हो गया होगा। RCR फिर R OMgX। उसी तरह बॉन्ड ब्रेकेज वाटर पा के लास्ट एग्जांपल है मैं लैन जा रही हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की। ध्यान ना देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी इसी तरह होंगे ने, असी उन्होंने लिखते जरूर इस तरह वा, बट फॉर्मेशन तो यही है ना। मैं की किया, इनू इथों चुकया ते इधर लगाता, बाकी तो कुछ भी फर्क नहीं है। प्लस R MgX साडे कोल की बन जाना है RCOH। जो जिथे सीगा मैं उन्होंने नहीं छेड़िया, आ दो ग्रुप जिथे भी ने ध्यान ना देखना, मैं नहीं छेड़ रही हूं, वो उत्थे ही ने। OMgX इथे R सी, इथे H सीगा, आने वाला सारे पासे आ रही है। वाटर की प्रेजेंस साडे कोल हुण की बन जाएगा RCOH ROH, डायोल बन गई MgX एंड OH। अच्छा बेटा, मैं तीन एग्जांपल्स तुहानू करके दिते हैं, एक एल्डिहाइड दी, एक कीटोन दी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दी। हुण तुसी एग्जांपल्स तो नोट करनियां ही ने। हुण अपनी कॉपी दे उपर जो तुसी नोट करोगे, R चेंज करके ते X चेंज करके एक एक एग्जांपल आप लिखनी है, ताकि तुहानू पता चल सके कि तुहानू समझ कितनी लगी। वैसे एक बार नकल मार के लिखोगे एक एग्जांपल नू, दूसरी एग्जांपल तक आंदे आंदे 50% याद हो जाएगा, तीसरी तक आंदे आंदे 100% याद हो जाएगा। पुत्र ए कन्वर्जन पेपर च जरूर आनी। सो अज इन्ना ही काफ़ी है। ते पिछले नॉमनक्लेचर ते ए दोनों चीज़ां नाल याद कर लेना ते नाल लिख लेना, ते बाकी कल मिलते हैं अगले लैक्चर में।